the fundamental interaction. In fundamental interaction, as you know, two particle on and 2, they're interacting by some exchange, by the exchange of some particle. And let us take the mass of exchange particle is MEX. So the range of any interaction, is inversely proportional to mass of exchange particle. This is really important for your exam. Suppose they will provide you that you have a two nucleon, suppose a proton and a neutron. They are interacting by the exchange of pi plus, having mass 140 mega electron volt per c square. Now, if the exchange particle between them is rho meson, having mass 770 MeV per c square, then what is the range of this interaction? है ना, यहाँ पे range suppose मान लो given है, for this interaction range is given है, that is 1.4 femtometer. So nothing, just you have to keep in mind that range is inversely proportional to mass of exchange particle. जैसे पहले exchange हो रहा था क्या, your exchange particle was pi, so I can write that I r pi, that is inversely proportional to mass of m pi. In second case, exchange particle is rho, so it will be on by proportional to m rho. So this is equation number 1 and this is equation number 2. So from, if you divide equation 2 from on, you'll get r rho by r pi, and that will provide you m pi by m rho, which implies that radius for second case, it will be radius in first case, range in second case, that will be range in first case into mass of pi particle divided by mass of coefficient. So this is provided, this is provided, this is provided. You can calculate R rho. So this kind of question is very obvious, and you may get in the upcoming examination. Now there is something called time scale, right? There's something called time scale. So if you see that interaction and time scale relation, and you have a time scale, interaction and time scale. So if you see, let us take that well-known interaction in particle physics, strong EM and weak. स्ट्रॉन्ग के लिए टाइम स्केल कितना होती है 10 to the power -23 सेकेंड. EM के लिए कितना होती है 10 to the power -10 सेकेंड होती है, सॉरी -20 सेकेंड. एंड वीक के लिए 10 to the power -10 सेकेंड होती है. अब इसको कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, कि आपको 3 डीके प्रोसेस गिवन होगी. सपोज दे आर गिविंग रो डीकेइंग टू पाई प्लस पाई माइनस. वन डीके प्रोसेस इज गिवन, और इसका जो मीन लाइफ ऑफ दिस डीके इज गिवन टाउ रो, और एक आपका गिवन है पाई 0 डिकेइंग टू गामा प्लस गामा. इसका मीन लाइफ गिवन है ऑफ दिस डीके, दैट इज टाउ पाई. और एक आपका गिवन है न्यूट्रॉन डिकेइंग टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस एसोसिएटेड न्यूट्रिनो, और इसका टाउ एन गिवन है. अब बोला गया है इन तीनों को अरेंज करो आप, इसका लाइफ मीन लाइफ ज्यादा होगा. बताओ कैसे करोगे. टाउ एन exactly, tau n should be large because this is your weak decay. Weak decay का लाइफ टाइम सबसे ज्यादा होती है. देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक tau pi, because your photon is involved, that will be your tau pi. Because photon involved is this, this is basically weak, and this is your photon is involved, that's why it is called EM. ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया कि इसका सबसे ज्यादा होगा.
फिर EM। और जब भी आपको ये दिमाग में रखना कि जब भी आपका वेक्टर, दिस इज कॉल्ड वेक्टर मेजॉन, व्हेन दैट वेक्टर मेजॉन डिकेज टू स्केलर मेजॉन, दैट डिके ऑलवेज बी स्ट्रांग। तो मेन आपका पर्पज ये नहीं कि आपको मतलब टाइम स्केल सिर्फ नंबर को याद करना पड़ेगा, याद टाइम स्केल क्या है, जस्ट नंबर को रखना है। मेन चीज क्या है कि आपको डीके को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डीके स्ट्रांग है, कौन सा वीक है और कौन सा ईएम है, वहां से उसको अप्लाई करोगे टाइम स्केल का जो कॉन्सेप्ट है कि टाइम स्केल if it is weak decay then the time scale or mean life will be large. If it is EM then that time scale or mean life of decay will be intermediate, and for strong decay that mean life of decay will be very extremely small. Okay, तो इस तरह की वो टाइम स्केल का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह की प्रॉब्लम देके आपको पूछेगा। ठीक है ना। Now there is something called parity. I will not go everything parity. So first of all, in parity में if you apply parity on position vector, if you apply on parity on velocity, if you apply parity on acceleration, if you apply parity on current density, if you apply parity on electric field, if you apply parity on magnetic field, if you apply parity on vector potential, so how did you behave? Tell me one by one. कैसे होगा बताओ। Sir, minus R first. It will be minus R. Okay, very good. It will be minus Of here. theta. So then acceleration, it should be like minus A, right? Minus A. Yes, then sir. J. Minus J. Minus J. Very good. Electric field. Y 0. Minus C, right? Yes. Minus E. Yes, sir. And then magnetic field. Same. Plus B. Plus B. And vector potential. Minus A. Okay. Now suppose इस तरह की क्वेश्चन बहुत ज्यादा obvious है कि आपका सपोज मान लो A particle is interacting with B and they are producing C and D, है ना, और इसका आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम गिवन है, टोटल एंगुलर मोमेंटम गिवन है, सपोज सम टोटल एंगुलर मोमेंटम Li गिवन है, और इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम Lf दैट इज नॉट नोन, यू हैव टू कैलकुलेट, है ना। अगर पैरिटी आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको गिवन है कि इस स्टेट का योर बाउंड स्टेट हैविंग एंगुलर मोमेंटम Li, है ना, so this bound state is short lived, they are decaying to C and D, you have to calculate that total angular momentum of C and D using the concept of parity. तो पैरिटी अगर सपोज मान लो ये आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन गिवन है, अगर सपोज मान लो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन गिवन है और आपको कैलकुलेट करना क्या करना है, आपको Li गिवन है, इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम गिवन है, फाइनल का Lf कैलकुलेट करनी है, और दैट इंटरेक्शन इज गिवन, सपोज मान लो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन गिवन है, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पैरिटी कंसेप्ट होती है। पैरिटी का क्या पार्ट होती है, एक्चुअली पैरिटी का जो पार्ट होती है, पैरिटी हैज टू पार्ट। पैरिटी अगर देखोगे तो पैरिटी का एक पार्ट होती है माइनस ऑन द पावर, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल पार्ट, और एक आपका क्या होती है इंट्रिंसिक पार्ट होती है, दिस इज सम इंट्रिंसिक पैरिटी। सो अगर आपको इन रिएक्टेंट का पैरिटी देखना है तो रिएक्टेंट का टोटल पैरिटी क्या होगी, माइनस ऑन द पावर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस, so that will be Li. Okay, then what you have to take, you have to take intrinsic parity of a particle, then intrinsic parity of B particle. So this is the total parity of reactant, और प्रोडक्ट में क्या है, माइनस ऑन द पावर Lf, then intrinsic parity of C, then intrinsic parity of D. So this is the total parity of product. अब ये इंटरेक्शन ज्यादातर टाइम में देखना आपका pi is capturing on proton and converting to neutron, something like that. So ये इंटरेक्शन बेसिकली ज्यादातर टाइम आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन गिवन होती है, मतलब 99%। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मतलब क्या है आपको, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में क्या होगा जी, पैरिटी कंसेप्ट होगा। सपोज मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, सपोज मान लीजिए इस तरह की गिवन है, पाई माइनस इट इज कैप्चरिंग ऑन प्रोटॉन, ओके, एंड इज कन्वर्टिंग टू न्यूट्रॉन, ठीक है, और इसमें बोला है कि ये जो स्टेट है शॉर्ट लिव बाउंड स्टेट है, एंड दिस इज एट एस स्टेट, दिस इज एट एस स्टेट, और आपको पूछा गया कि इनका जो
नेट एल कितना होगा। तो फिर क्या करोगे, एस स्टेट के लिए एल आई कितना हो जाएगा, एल आई कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। ये पार्ट तो खत्म हो गया। पैरिटी ऑफ पाइप पार्टिकल, पैरिटी ऑफ प्रोटॉन, देन पैरिटी ऑफ न्यूट्रॉन माइनस ऑन द पावर एल, है ना। और प्रोसेस क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में आपका टोटल पैरिटी कंसेप्ट होगा। तो ये आपका गिवन है, ये गिवन होगी। इंट्रिंसिक पैरिटी क्या होती है बताओ। अगर इंट्रिंसिक पैरिटी की बात चले, इंट्रिंसिक पैरिटी फर्मियन का क्या होती है, इंट्रिंसिक पैरिटी का क्लास 1 होती है। अगर फॉर देयर एंटी पार्टिकल क्या हो जाएगी, -1। बोसोन के लिए -1 होती है, एंड फॉर देयर एंटी पार्टिकल आल्सो -1, है ना। अगर प्रोटॉन की, पायोन की बात करें, पायोन की पैरिटी क्या होगी, +1। पायोन इज बोसोन, -1। वो बोसोन शुड बी -1। प्रोटॉन क्या होती है, फर्मियन होती है। So basically all mesons is having parity -1 और their antiparticle के लिए -1। leptons and baryons they are basically fermions, तो उनके लिए क्या होगा आपका parity +1 होगा, और उनका एंटीपार्टिकल के लिए क्या होगा, -1 होगा। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इंट्रिंसिक पैरिटी आपको पता है, फर्मियन बोसोन पार्टिकल ही रहेगा। इंट्रिंसिक पैरिटी सारे का पता है। इनिशियल स्टेट का एल गिवन होगी, फाइनल स्टेट का एल पूछा जाएगा। कर लोगे ना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है, टीआईएफआर में भी आ रहा है। सर क्या जी, सर ये फर्मियन एंड बोसोन के लिए पैरिटी कैसे निकला? फर्मियन एंड बोसोन के लिए पैरिटी नहीं, इंट्रिंसिक पैरिटी जो है वो आपका फर्मियंस के लिए डिफाइन है। इंट्रिंसिक पैरिटी कैसे निकाला आता है, प्रॉपर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एंड दैट आई थिंक, हाँ दैट बेसिकली आई थिंक कमिंग फ्रॉम वेव फंक्शन। I'll check and I'll let you know, but intrinsic property जो होती है, intrinsic parity जो होती है, फर्मियंस के लिए +1 होती है, और बोसोन के लिए आपका -1 होती है। That you have to keep in mind. ओके सर। Okay, now we have a same thing, you have a time reversal. सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो लास्ट प्रॉब्लम था पाई माइनस प्लस प्रोटॉन वाला, उसमें इंट्रिंसिक पैरिटी तो देख लेंगे, लेकिन जो एल आई वाली चीज है वो हमको दे रखी थी क्या? हाँ, एस स्टेट कहा गया था ना, एस स्टेट। अच्छा अच्छा, ओके वो गिवन होगी, ओके। बेसिकली उस कॉन्सेप्ट को यूज करके देखो, मेन चीज है वो फॉर्मूला यूज करनी है आपको। अब बहुत सारे पैरामीटर है, एक अननोन रहेगी, सारे नोन रहेगी, अब कौन सा अननोन रहेगी वो आपको निकालना है ना। बट वो जो इक्वेशन है उसी को यूज करना है आपको। हो सके कि सारे इनिशियल और फाइनल स्टेट का आपका एल भी गिवन है, और इंट्रिंसिक पैरिटी सारे पार्टिकल के गिवन है, एक अननोन पार्टिकल आपको दिया गया है, और पूछा गया है कि उस अननोन पार्टिकल का इंट्रिंसिक पैरिटी कितना है, ये भी पूछ सकता है। बहुत सारे अननोन पैरामीटर है, सारे नोन दे दिए, एक आपको अननोन दे दिया, एक ही इक्वेशन है, तो एक अननोन पैरामीटर आपको पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। गॉट इट सर। Then you have a next, you have a time reversal. Time reversal. Time operator. So again, under time reversal, what will happen to R? What will happen to V? What will happen to acceleration? What will happen to force? What will happen to J? What will happen to electric field? What will happen to magnetic field? What will happen to vector potential? Tell me in my own. So it will be as it is, right? Yes, sir. It will be minus V. It will be acceleration as it is. It will be as it is. It will be minus J. It will be, ये क्या आ जाएगा? It will be as it is, right? So कैसे बोला जाएगा कि under time reversal electric field will show even nature or odd nature, इस तरह की आपको पूछा जाएगा। ओके, एक्चुअल सीक्वेंस। हाँ हाँ,
Then magnetic field under time reversal, what will happen? minus b. Minus b, right? Yes, sir. Acceleration का sorry इसका क्या होगा? A का Minus A. minus a. minus. ठीक है. And then you have a charge conjugation. तो यह चार्ज कॉन्जुगेशन R का क्या होगा? V का क्या होगा? Acceleration, force, then current density, electric field, magnetic field, and vector potential. Tell me one by one. बताओ. R का क्या रहेगा? Same, right? Same. V का same, A का same, F का same. Current density क्या आ जाएगा? Minus A, right? Minus. Field minus C, right? Yes, sir. B का Minus. B का minus, right? Minus B. And A का Minus A. क्या वो समरी क्वांटम नंबर का समरी करे या छोड़े? बताओ. पूरा जो समरी है आप लोगों को सबको याद है? समरी ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल Yes, sir. याद है. याद है? करने का जरूरत है या नहीं? बताओ. प्लीज रेस्पॉन्ड मी सो दैट आई कैन प्रोसीड. क्या समरी करे क्वांटम नंबर का? करने का जरूरत No, है sir. या नहीं? नो जरूरत नहीं. जरूरत नहीं. चलो. सर वो जो डेल्टा प्लस प्लस पार्टिकल जो हाँ हाँ उसका जरूरत है उस नहीं. हाँ उसका एक हाँ उसका जितना जरूरत है मैं आपको बता देता हूँ. Sir, Yes. हाँ जी बोलो बोलो. sir, that one the elastic scattering problem of neutron. The cross section of reaction is said. The previous year question that I can't understand what हाँ हाँ would be the answer. 1 by E or 1 by E squared or E squared something. okay. Scattering cross section ना. Yes, sir. Yeah, that thing actually I discussed with Atul sir. I told him to do that because it's a scattering problem. We observe that there is a Hamiltonian, right? Some integration is there, right? Yes, sir. I 1 by root 2 discussed with into Atul sir. I think interaction term there. I request him, he will do that and he will send. Okay, because Okay. it's a part of scattering. Okay. So let us summarize that your quantum number for heavy baryons. So you have a symbol. Then spin, then L, Le, L mu, L tau. Then baryon number strangeness I3. So you have a delta plus, double plus. Spin कितना है इसका? बताओ. Delta 3 by dot 2. 3/2. L0, Le0, L mu 0, L tau 0. Baryon number on strangeness 0, I3/2, I3 3/2. Then you have a delta plus, spin 3/2. L0, Le0, L mu 0, L tau 0. Baryon number on S0, I3/2, I3 half. Then you have a delta 0, spin 3/2, L0, Le0, L mu 0, L tau 0. Baryon on S0, I3/2, I3 minus half. And then you have a delta minus, spin 3/2, L0, Le0, L mu 0, L tau 0. Baryon number on I0, sorry, S0, I3/2, I3 minus 3/2. And you have a heavy baryon like
sigma star plus spin 3/2 L0 Le0 L mu 0 L tau 0. Baryon number on S is how much? S is minus 1, right? S is minus 1 and I is on. I is on, I3 is on. We have a sigma star 0 spin 3/2 L0 Le0 L mu 0 L tau 0. Baryon number on S minus on I on I3 0. And then you have a sigma star minus spin 3/2 L0 Le0 L mu 0 L tau 0. Baryon number on S minus on I3 minus on. Okay, and you have more particle like cascade star 0. Cascade star 0 spin 3/2 L0 Le0 L mu 0 L tau 0. Excuse me, baryon on S minus 2 I half I3 half. And then you have cascade star minus spin 3/2 L0 Le0 L mu 0 L tau 0 baryon on S minus 2 I half I3 minus half. Okay, and you have a omega star minus S3/2 L0 Le0 L mu 0 L tau 0. Okay, and baryon number on S minus 3 I0 I3 0. Okay. Now we'll see the conservation laws. Okay. First of all, we'll see that conservation laws. You have a strong parameter, then strong EM weak. You know? So first of all, you have a energy. Parameter means energy. Energy for any decay, whether it's strong, EM weak, that should be conserved. Linear momentum. Linear momentum, it should be conserved in all possible decay. Then angular momentum J, that should be conserved in all decay. Right? Then charge should be conserved in all decay. Charge should be conserved in all decay. और क्या होती है? Then you have a parameter strong EM weak. Okay. Then what do you have? Charge is हो गया lepton number L, Le, L mu, L tau. That should be separately conserved for all possible interaction or decay. Baryon number should be conserved in all possible interaction or decay. और क्या होती है? Then strangeness. Strangeness is conserved. Huh? Spin also, sir. Spin should be conserved. Spin should be conserved. Spin should be conserved in strong EM weak. Strangeness S conserved in strong EM but weak में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. अगर नहीं हुआ तो फिर डेल्टा S should be within the range of plus minus 1. है ना? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर नहीं हुआ तो change in delta S that should be within 1. Then you have isospin. It's conserved in strong. It is not conserved in EM. It is not conserved in weak. Then you have I3. It will be conserved in strong. It will be conserved in EM. It will not be conserved in weak. ठीक है ना? तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि I जो है that is not conserved in
EM and weak. But I3 जो है that will be conserved in EM but will not be conserved in weak. So this is the basic thing. Now can you tell me कि ये इस तरह की डीके प्रोसेस है पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन डीके गोइंग टू गामा, क्या ये प्रोसेस पॉसिबल है? क्या ये प्रोसेस पॉसिबल है? नो, राइट? बिकॉज व्हाई? the energy will, linear momentum will not be conserved. So this decay process can be electron is going in this direction, positron is coming from opposite direction. Okay, so before production of gamma, the linear momentum of left hand side is 0. When they are colliding, they are producing a photon. So product is having actually non-zero linear momentum, है ना? तो इन्हीं से इस ये आपका जो रिएक्टेंट का जो आपका लीनियर मोमेंटम दैट इज 0 और प्रोडक्ट का जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज नॉन जीरो. सो लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, दैट्स व्हाई दिस डीके और इंटरेक्शन इज नॉट अलाउड, बिकॉज फॉर एनी इंटरेक्शन लीनियर मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड. बट यस, इस तरह की इंटरेक्शन इज अलाउड. अगर इस तरह की होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन इंडक्शन, दे आर प्रोड्यूसिंग 2 फोटोन, दिस इज अलाउड बिकॉज ऑन में गो इन द अपर डायरेक्शन, अदर में गो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. So, इस तरह की इंटरेक्शन अलाउड है क्योंकि आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा. हाँ जी. So there is a concept from the previous question why that association of ATDM is 0 to TDM. The design is हाँ एग्जैक्टली हाँ यस यस यस. जैसे आइसोस्पिन ड्यूटेरियम, राइट? अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है ड्यूटेरियम का आइसोस्पिन क्यों 0 होती है, जैसे आपको आइसोस्पिन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया जी? जैसे आपका ग्रुप ऑफ पार्टिकल हैविंग सेम multiplicity. हाँ सेम क्या होती है? सेम नियरली सेम मास, Yes. सेम स्पिन और सेम चार्ज. सेम स्ट्रेंथनेस. चार्ज नहीं होती है जी. जैसे आपका सपोज मान लीजिए पाई प्लस, पाई 0, पाई माइनस, तीनों को आप ग्रुप करते हैं क्योंकि तीनों का सेम मास है, सेम स्पिन है और सेम स्ट्रेननेस भी है ना? तो इसको आप ग्रुप करके एक नंबर नोट कर दो 2i + 1 दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मेंबर. यहाँ पे 3 है, इट मींस i विल बी हाउ मच? दैट विल बी ऑन. आपको पता है ऑन d2. क्या इस तरह की और आपको सिस्टम पता है जिसका सेम मास हो? इस तरह का सिस्टम पता है जिसका सेम मास हो, सेम स्पिन और सेम स्ट्रेननेस हो? कोई नोन है आपका? बताइए जरा. आंसर दीजिए ना. आपका ऐसा कोई और पार्टिकल पता है? और सर कोई हीलियम 2+. हीलियम 2+. इसमें आपका कितना प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है. कितना न्यूट्रॉन है यहाँ पे? कितना न्यूट्रॉन है जी? एक न्यूट्रॉन है. यहाँ पे हीलियम 2+ करेंगे तो फिर आपका नो 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 पॉसिबल No, नहीं. only नॉट पॉसिबल. deuterium एक is ही possible. पार्टिकल है तो फिर 2i + 1 क्या करोगे आप? 2i + 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन. इसका मतलब क्या है? i इक्वल्स टू 0. ठीक है. Okay, so then you have this kind of problem which also is to ask. Suppose मान लीजिए कि हाँ आपको पता है कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, एंड इफ इट इज इंटरेक्टिंग विथ मेसॉन पार्टिकल, तो फिर किस तरह की आपका ये हो गया? ये डीके प्रोसेस किस तरह की होगी? इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग. दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग. अगर होगी तो स्ट्रॉन्ग में ही होगी, अगर नहीं होगी तो फिर किसी में नहीं होगी. This when proton on the left hand side or neutron on the left hand side, it is interacting with meson. Thus, interaction is only allowed by strong interaction. इस तरह की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग में ही होगी. इस तरह की समझ मान लो इंटरेक्शन गिवन है और वो स्ट्रॉन्ग का जो रूल है या कंजर्वेशन लॉ से सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, बट ईएम का सेटिस्फाई कर रहा है. क्या इस तरह की इंटरेक्शन अलाउड है? फिर नहीं है. ये अगर होगी तो फिर आपका स्ट्रॉन्ग में ही होगी. समझ मान लो इस तरह की आपका कोई इंटरेक्शन गिवन है और आप कंजर्वेशन लॉज देख रहे हो और वो इंटरेक्शन क्या है? कंजर्वेशन लॉज
ईएम का सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ईएम का सेटिस्फाई कर रहा है बट स्ट्रॉन्ग का नहीं कर रहा है। ईएम का सेटिस्फाई कर रहा है मतलब सारी चीज कंजर्व है, आई कंजर्व नहीं है। तो फिर इस तरह की इंटरेक्शन अलाउड होगा? फिर नहीं होगा, क्योंकि ये आपका अलाउड है तो सिर्फ किसमें है, स्ट्रॉन्ग में ही होगा। और स्ट्रॉन्ग में होने के लिए जितना स्ट्रॉन्ग का कंजर्वेशन लॉज है उसको पूरा सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो आपको ये दिमाग में प्लीज कीप इन माइंड कि जब भी आपका प्रोटॉन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड न्यूट्रॉन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज देयर एंड इफ इट इज इंटरेक्टिंग विद मेसॉन, दैट इज ओनली अलाउड बाय स्ट्रॉन्ग। अगर इस तरह की इंटरेक्शन है और ईएम या वीक का कंजर्वेशन लॉज सेटिस्फाई कर रहा है, स्ट्रॉन्ग का नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका अलाउड ही नहीं होगा। तो इसको अलाउड होने के लिए स्ट्रॉन्ग का सारे कंजर्वेशन लॉज सेटिस्फाइड है, बट ये होगा तो आपका स्ट्रॉन्ग में ही होगा। ठीक है। For example, I am giving suppose pi minus is interacting with proton, it's producing lambda 0 k0, है ना? चेक करना, it will be conserve, it will be allowed in strong interaction, ठीक है ना? सपोज अगर क्या ये वाला इंटरेक्शन अलाउड है, n डिकेज टू p प्लस pi माइनस, चेक करो जरा, अलाउड होगा? Yes, sir. No, Allowed? sir. इसमें देखो सारे कंजर्वेशन लॉ सेटिस्फाइड है, बट यहाँ पे आपका एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। आइसोस्पिन क्यों नहीं होगा? एनर्जी इज नॉट एनर्जी क्यों? क्योंकि इसका मास कितना है, 939, और इसका कितना है 938, इसका कितना है 140, सारे एमईवी में है। तो ये रेस्ट पर है, रेस्ट से आपका डीके होकर प्रोटॉन एंड पाई माइनस प्रोड्यूस हो रहा है। इसका अवेलेबल एनर्जी कितना है 939 एमईवी, और इसका प्रोडक्ट का एटलीस्ट एनर्जी कितना होगा 938 प्लस 140 एटलीस्ट। क्यों मैं एटलीस्ट बोल रहा हूँ, जब ये रेस्ट पे होगा, जो वो आपका रेयर कंडीशन है, समझ रहे हो? तो ये तो उसका एटलीस्ट एनर्जी इतना होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में इतना एटलीस्ट एनर्जी है, सॉरी राइट हैंड साइड में इतना एनर्जी है, और लेफ्ट हैंड साइड में ये रेस्ट पर है, तो इसका एनर्जी कितना है 939। तो देखो इन जनरल एड आपका डीके प्रोसेस अलाउड नहीं है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन होगा नहीं, क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट का एनर्जी है that will be greater than equals to 938 plus 140, that will be higher than 939, so energy will be violated here, that's why this decay is not allowed. But अगर ये mentioned है कि inside nucleus, क्या inside nucleus से allowed नहीं है? Yes, sir. It is inside allowed. Inside nucleus is allowed. Same thing, suppose मान लो beta plus decay, proton decaying to neutron plus positron plus neutrino, अगर ये मेंशन है कि फ्री स्पेस, क्या फ्री स्पेस में अलाउड है? क्या फ्री स्पेस No, में अलाउड? नो, बिकॉज अगेन द एनर्जी विल बी वायोलेटेड। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का जो मास है दैट विल बी हायर देन रिएक्टेड। तो आप कभी भी हेवी मास नहीं बना सकते हो फ्रॉम लाइटर मास, है ना? और अब ये आपको पता है ना कि जब भी आपका फोटोन, हाँ जब भी आपका सर? फोटोन, हाँ जी फिर वो बस एक बात पूछनी है, आपने कहा कि इनसाइड न्यूक्लियस ये अलाउड होगा, हाँ हाँ, ऐसा क्यों? इनसाइड न्यूक्लियस देयर इज अ न्यूक्लियर फोर्स, राइट, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि जैसे आपका समझ मान लो एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस लोग है कि आपका एक न्यूट्रॉन, one minute, a neutron is decaying to proton, right, 5 minus। अब ये न्यूट्रॉन तो एक प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है ना, ये न्यूट्रॉन सपोज मान लो किसी और से एक मोमेंटम मिल रहा है इसको, सपोज मान लो एक प्रोटॉन से इंटरेक्ट कर रहा है, प्रोटॉन इसको एक पाई प्लस दे रहा है। तो फॉर इन inside nucleus that every nucleon is having some extra momentum because of nuclear force। इस न्यूट्रॉन सिर्फ इस प्रोटॉन के साथ ही तो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है ना, ये तो दूसरा न्यूक्लियन के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसके पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा मोमेंटम होता है, और एक्स्ट्रा मोमेंटम मतलब क्या है, एक एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी होता है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण इनसाइड न्यूक्लियस पॉसिबल है, दैट वी हैव लर्न इन न्यूक्लियर फोर्स। यस यस गॉट इट सर। ठीक है ना? तो दिस इज और ये चीज आपको पता है ना, जब भी कोई इंटरेक्शन या डीके में आपका न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो, दैट इंटरेक्शन और डीके विल बी अलाउड ओनली बाय वीक इंटरेक्शन। अगर आपका फोटोन इन्वॉल्व है कोई इंटरेक्शन या डीके में, दैट विल ओनली बी अलाउड बाय EM. EM interaction, Electromagnetic. conservation laws are satisfied। ठीक है?
Then there is something called Gell-Mann-Nishijima formula. So I'm writing the modified form here. I'm writing modified. Can you tell me what is the modified form? So that charge of a subatomic particle can be written as I3 plus B plus S. B means baryon number, strangeness, then charm quantum number, then top quantum number, then bottom quantum number by 2. So charge of a subatomic particle or elementary particle can be related with its I3, baryon number, strangeness number, charm number, top number, bottom number divided by 2. ठीक है. And last एक जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है पार्टिकल फिजिक्स का, कि आपका कोई एक डीके प्रोसेस गिवन होती है, पाई माइनस सपोज मान लो पाई प्लस डीकेइंग टू म्यू प्लस न्यू म्यू, है ना. एक डीके प्रोसेस गिवन होती है और इसमें से क्या पूछा जाता है कि जो आपका एनर्जी ऑफ म्यू पार्टिकल इज हाउ मच, एनर्जी ऑफ न्यू म्यू इज हाउ मच, है ना, या आपका वेलोसिटी ऑफ म्यू पार्टिकल इज हाउ मच, है ना. इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पार्टिकल फिजिक्स में. ये तो आपका समझ मान लो 2 बार नेट हुआ तो 2 बार में 1 बार आ ही जाता है ये चीजें, है ना. तो कैसे करोगे, ये बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं. आपको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंजर्व दैट एनर्जी. so एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा. so एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल शुड बी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ म्यू पार्टिकल प्लस एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, राइट. और एक क्या करना होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. जैसे आपका रेस्ट पर है, इसका लीनियर मोमेंटम कितना है, 0 है. दैट शुड बी इक्वल्स टू पी म्यू प्लस पी न्यू, राइट. तो यहां से क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है पी म्यू और पी न्यू का मैग्नीट्यूड जो है लीनियर मोमेंटम का, दैट विल बी सेम. देयर विल बी आई मीन द डीके प्रोसेस यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस. pi plus is decaying to mu plus and neutrino, right. They should move in opposite direction but their linear momentum magnitude should be same. तो एक तो आपका इक्वेशन ये आ जाएगा, राइट. और ई पाई कितना होगी आपका बेसिकली बताओ, दैट विल बी m pi c square, right. E pi will be how much, that will be m pi c square because it is at rest. So available energy, total energy of this particle, that will be the rest mass energy. तो ये आपका आ गया m pi c square हो गया, फिर m pi c square and that is equals to e mu plus e nu. और e mu का जो एनर्जी आप लिखेंगे कितना लिखेंगे, e mu का जो होती है आपका क्या होती है जी, p square c square या हम एज्यूम करेंगे इसको p, तो इसको हम लिख सकते हैं p square c square प्लस m mu square c to the power 4, है ना. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे और इसको आप 2 मानो. सिमिलरली आप ई न्यू का स्क्वायर करोगे, ये कितना मिलेगा आपको, पी स्क्वायर सी स्क्वायर. क्यों, क्योंकि जो न्यूट्रिनो होती है इसका मास लेस होती है. तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 and 3. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इफ यू सब्सट्रैक्ट 2 from 3, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक ई म्यू माइनस ई न्यू का एनर्जी मिल जाए फॉर्म मिल जाएगा. और आपके पास ई म्यू प्लस ई न्यू ये पता है ना. तो यहाँ से कंजर्व करके आपको क्या मिलेगा, एक्चुअली जो एनर्जी ऑफ म्यू पार्टिकल, एक आपका ई म्यू प्लस ई न्यू इतना पता है और ई म्यू माइनस ई न्यू यहाँ से पता चल जाएगा, है ना. वी हैव डन दिस इन क्लास, है ना. तो यहाँ से आपको ई म्यू ई न्यू इवन वेलोसिटी भी पता चल जाएगा, है ना. थोड़ा सा चेक करना. So just you have to do what you have to do, nothing you have to do, just you have to conserve that energy and linear momentum, and you will get that energy of mu particle and new particle and the velocity also, just by doing this, है ना. तो इस तरह की डीके में आपको ये भी गिवन होगी, ऑब्वियसली इसका मास गिवन होगी, इसका मास गिवन होगी, है ना. रेस्ट मास सारे गिवन होगी और आपको एनर्जी या वेलोसिटी या मोमेंटम भी पूछ सकती है. तो कुछ नहीं है, जस्ट आपको एक ही चीजें है यहाँ पे, एनर्जी एंड मोमेंटम को कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है. सो देन बट ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब 50% चांस होती है पार्टिकल फिजिक्स में से कि ये वाला आएगा या फिर आपका दूसरा कोई इंटरेक्शन या डीके प्रोसेस वेदर इट इज स्ट्रांग और ये इस तरह के क्वेश्चन आए.
So I think this is all about your nuclear and particle physics. So I hope कि एग्जाम में आप लोग सारे जो 3 क्वेश्चन आते हैं या 3 या ज्यादा भी आ सकते हैं, ट्रेंड तो चेंज हो सकती है. So I hope that every student will do 100%. And from my side, all the best to all of my students. If you have any question, you can ask. I'll stop. Okay, then see you. All the best. Okay, sir. Thank you, sir.